Hello students, this video is part second of the chapter friction. So let's start the topic friction a necessary evil. Friction को necessary evil क्यों कहा गया है? Because on the one hand it is very necessary because of its advantages, and on the other hand it is known as evil because of the disadvantages. So we will discuss one by one advantages and disadvantages of the friction. So let's start. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler? तो अगर आपके पास एक earthen pot है और एक glass tumbler है तो आप किसको easily hold कर पाओगे? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अर्दन पॉट है तो आपको पता है उसकी जो सरफेस होती है उसमें इरेगुलरिटीज़ होती है विच प्रोवाइड फ्रिक्शन, तो उसको होल्ड कर पाना ईजी होगा एज कम्पेयर टू द ग्लास टम्बलर. एंड ऑन द surface of the glass tumbler a greasy layer is also present. Thin layer of cooking oil is present which make it slippery. So in that case, because of the surface is slippery, so it is very difficult for us to hold that glass tumbler. because उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर? अगर ग्लास के आउटर सरफेस में कोई फ्रिक्शन होता है, इट मीन्स अगर ग्रीस नहीं होती है, फ्रिक्शन है वहाँ पे, तो तब हम उसे इजीली होल्ड कर पाएंगे. Recall also how difficult is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Wet marble floor होगा तो उसमें हम easily walk नहीं कर पाएंगे because of the lack of friction. तो इस वजह से हम वहाँ पे easily walk नहीं कर पाएंगे. So can you imagine being able to walk at all if there were no friction? अगर friction नहीं होगा तो हम वहाँ पे walk नहीं कर पाएंगे. Clear? You could not write with pen or pencil if there were no friction. अगर friction नहीं होगा तो हम किसी भी पेपर पे नहीं लिख पाएंगे. फ्रिक्शन ना होने का मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो पेपर होगा वो स्लिपरी होगा और उसके ऊपर पेन वर्क नहीं करेगा. तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ये एडवांटेज है कि फ्रिक्शन की मदद से ही हम पेपर पे लिख पाते हैं. और when your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with stick to the blackboard. blackboard पे लिख पाना भी तभी possible है because of the presence of friction. अगर friction नहीं होगा तो chalk से हम board पे नहीं लिख पाएंगे. And a nail is fixed in the wall due to friction. nail को भी हम तभी fix कर पाएंगे wall पे अगर फ्रिक्शन होगा. बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट होल्ड द हैमर प्रॉपरली एंड वी कैन नॉट nail we cannot fix the nail on the wall. So this is the advantage. If an object started moving it would never stop. और क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टार्ट कर रहा है वो मूव करना तो वो स्टॉप नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे फ्रिक्शन नेसेसरी है. फ्रिक्शन के बिना कोई भी व्हीकल ना तो स्टॉप हो पाएगा ना ही स्टार्टिंग में स्टार्ट हो पाएगा. और अगर स्टार्ट हो गया तो वो स्टॉप नहीं होगा. इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है. Had there been no friction between the tires of the automobile and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. You cannot fix the nail on the wall or tie a knot. तो ये सब आपको क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल्स. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल. अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े फ्रिक्शन के, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन को एविल क्यों कहा गया है. बिकॉज it wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of the shoes. So have you seen worn out steps of foot over bridges at railway stations? तो इनमें क्या होगा, ये एविल बताया गया है फ्रिक्शन का.
और क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी एंड वो एनर्जी वेस्ट होगी, बिकॉज एडिशनल एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी ये वेस्ट होती है, किसी तरह से किसी फॉर्म में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो फ्रिक्शन की वजह से ही हुई है। इट मीन्स जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर? So you might have observed that the jar of a mixer become hot when it is run for a few minutes. जो मिक्सर ग्राइंडर होता है जब वो वर्क करेगा, उसमें मशीन वर्क करेगी तो वहाँ पे भी हीट रिलीज़ होगी, और वो हीट जो रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। सो यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फॉर एग्जाम्पल लाइट द मैच स्टिक को लाइट करना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूस फायर बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हेल्प से ही, फ्रिक्शन की वजह से ही यहाँ पे फायर प्रोड्यूस होगी। सो व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ होती है वहाँ पे भी हीट जनरेट होगी, और वहाँ जो हीट जनरेट होगी वो कॉज करेगी मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, कैसे रिड्यूस होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वी विल डिस्कस। सो प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन कैसे डिज़ायरेबल होता है कुछ सिचुएशंस में। For example, it is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो ये आप देख सकते हो शूज़ में, और ये जो टायर्स हैं तो ये क्या होते हैं, ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करे और अपना वर्क इफ़ेक्टिवली कर सके। तो इस तरह से फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. So when you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. ये सब फ्रिक्शन से होता है। उसके बाद द व्हील स्टॉप्स मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप फॉर देयर ओपोनेंट। यहाँ पे भी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। कबड्डी प्लेयर अपने हैंड्स में क्या करते हैं, रब करते हैं सॉइल को, सो दैट जो उनकी ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, है ना, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। जिमनास्ट ऑल्सो अप्लाई द सेम थिंग. They apply some cold substance on their hands to increase friction for better grip. So in some situations में जो फ्रिक्शन होता है, कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल होता है। इट मीन्स कि हमें नहीं चाहिए कि उन सिचुएशंस में फ्रिक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरम बोर्ड, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द बोर्ड सो दैट वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट। और जो हमारा जो गेम है उसे हम इजीली खेल सकें। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. In all the cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. इन सब केसेस में हम फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं बाइसिकल में या किसी भी दूसरे चीज़ों में, सो दैट कि फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो और हमारा वर्क एफिशिएंटली हो सके। तो ऑयल, ग्रीस, ये सब चीज़ें हम अप्लाई करते हैं मूविंग पार्ट्स में किसी भी मशीन में, जिससे कि वो मशीन बहुत ही ईजीली वर्क कर सके। Clear? Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement
बिकम्स स्मूथ, मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उन्हें लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो कुछ मशीन्स में इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट एंड एयर cushion between the moving parts is used to reduce friction. So I hope students आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। थैंक यू।